Welcome students, we are discussing subject verb agreement topic. In this topic, first point is that in the present tense, verbs agree with their subjects in number or in person. The present tense ending s or es is used on a verb if the subject is third person singular, otherwise the verb takes no ending. Simple meaning is this, that verb is used according to the number and person of the subject. If the subject is singular, singular verb is used. If the subject is plural, then plural verb is used. One thing remember, whenever we add s or es in verb, it becomes singular. Otherwise, it is in plural form. See the table. If there is first person or second person, we use plural form of the verb. If subject refers to third person, that is he, she, it, then we use singular verb, and by adding s or es in verb, it becomes singular. And if person refers to we, you, they, in other words, we can say with we, you, they, we use plural verb. यहाँ पे ये पॉइंट समझना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। अगर पर्सन हमारा आई है, यू है, वी, यू, दे है, तो इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे या एस और एस हम वर्ब में यूज नहीं लगाएंगे। अगर हमारा पर्सन ही, सी, इट है, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे बल्कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सी, इज द वर्ब सब्जेक्ट he, she, it or one, then we use s in verb that loves, tries, has, cries, flies. Okay, meaning is this, if the subject refers to he, she, it or singular subject, then we use s or es in the verb. Second, you see, is the subject a singular noun such as parent, then we use s in singular verb. Is the subject a singular indefinite noun, for example anybody, anyone, each, either, everybody, everyone, everything, neither, no one, someone or something, these singular indefinite noun refers to singular number, and that's why we use singular verb. It means that we use s or es in verb. For example, everybody speaks, everyone looks at the blackboard. Okay, everyone looks at the blackboard, so everyone is singular, that's why we use the verb looks. Clear? तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे हमने एस यूज किया या एस यूज किया वर्ब में। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन है कोई, तो हम यूज करेंगे वर्ब में एस या एस। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन है, जैसे कि एनीबडी, एनीवन, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नीदर, नो वन, समवन, तो इनके साथ भी हम क्या है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। सी, यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लव, ट्राई, हैव। ओके, अगर हमारा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इफ आवर सब्जेक्ट इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। मीनिंग इज दिस, वी डू नॉट यूज एस और es in the verb
इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाते हैं और उसके बेस फॉर्म में ही हम यूज करते हैं वर्ब को। जैसे दे स्पीक, वी गो टू द मार्केट, ओके, वी गो टू द मार्केट, वी टॉक, दे laugh, understand? So in this way. Now to come to next point. After learning the basic fundamentals of subject verb agreement, you will try to understand these special rules, and after some practice forming correct sentences will be easy. One thing remember, what we have discussed the fundamental of the subject verb agreement, जिसमें हमने देखा कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और इसमें हमने देखा कि पर्सन में आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, और ही, सी, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नाउ अब कुछ स्पेशल रूल्स हम देखेंगे। सी, मेक द वर्ब एग्री with its subjects, not with the word in between. Meaning is this: whenever we have to use verb, we will choose the subject in a proper way. See the example. High levels of pollution cause damage to the respiratory tract. So here in this sentence, our subject is level, not pollution. High levels of pollution. So pollution is not subject here, level is subject. So we will use verb according to level. The subject is levels here, and levels is plural. That's why we use plural verb, that is cause. Understand? One thing remember this one. Make the verb agree with subject, not with the word in between. हमें उस सब्जेक्ट की पहचान करनी है जो सही हो, और इस सेंटेंस हम देखते हैं लेवल्स क्या है, सही सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या यूज किया, कॉज। नेक्स्ट यू सी, विथ सब्जेक्ट ज्वाइंड विथ और, नॉर, नीदर, ईदर, और, मेक द वर्ब एग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट नियरर टू द वर्ब if the sentence contains these words, or, nor, neither, either, okay, then we use verb according to the nearest one. In the example you see, a driver's license or credit card is required. So here in this sentence you see we use the verb according to the that subject that is nearer to the verb. इस सेंटेंस में नियर, वर्ब के नियर कौन सा सब्जेक्ट है, क्रेडिट कार्ड, न कि ड्राइवर्स लाइसेंस, इसलिए हमने इज यूज किया क्रेडिट कार्ड के साथ। बात समझ गया? तो यहाँ पे हमें ये बात को ध्यान रखना है, जब भी इधर हो, नॉर हो के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या है, वर्ब यूज करेंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड with the help of or, nor, okay, either or, neither nor, so in that case we use verb according to the second subject. जहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड इज रिक्वायर्ड, so here we will use verb according to the second subject. Two subjects are joined by or, one is driver's license and second one is the credit card. So here we use वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज क्रेडिट कार्ड। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सेकेंड सेंटेंस, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा है, क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही हम क्या है, वर्ब यूज किए। सी द टर्म ड्राइवर्स लाइसेंस वाज नॉट यूज इन मेकिंग द वर्ब एग्री विद द सेंटेंस, इंस्टीड इट वाज द टर्म क्रेडिट कार्ड। सेकेंड एग्जाम्पल यू सी, neither the lab assistant nor the students were able to download the information. Again in this sentence here you see two subjects are given, the lab assistant and second is the students, and these two subjects are joined by neither nor. That's why we use verb according to the second subject.
that is students. Students refer to the plural subject, that's why we use plural verb, that is were, WERE. ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी कोई सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और, नॉर, नीदर, नॉर, इधर और से जुड़े होंगे तो ऐसे केस में हम हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब को यूज करते हैं। बात समझिए, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या यूज करेंगे, वर्ब, ये वर्ब यूज करेंगे। बिल्कुल ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। जब भी दो सब्जेक्ट्स नीदर, नॉर, इधर और से जुड़े होंगे तो ऐसे केसेस में वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। Treat most indefinite pronouns as singular. Now these pronouns are used as singular subject. Okay, that's why we use singular verb with these pronouns, indefinite pronoun. We are focusing on indefinite pronoun. Meaning is this: if the sentence contains anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, neither, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, then we use singular verb. इन सभी indefinite pronoun के साथ जो कि सिंगुलर हैं, इनके साथ हमेशा हम यूज क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू सी, everybody who signed for the snowboarding trip was taking lessons. Everyone on the team supports the coach. So here you see this sentence contains everybody, that's why we use verb was according to this everybody. In the second sentence you see everyone, we use verb according to everyone, that supports. So everybody, everyone refers to singular, that's why we use singular verb. ये सेंटेंस हमने देखा एवरीबडी, एवरीवन यूज किया हुआ है जो कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए हमने जो है इनके साथ वर्ब यूज किया वाज और सपोर्ट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। हाउएवर a few definite nouns such as all, anyone, any, none, some may be singular or plural depending on the noun or pronoun they refer to. This point is very, very clear. If these indefinite nouns are used in sentence all, any, none, some, it may be treated as singular or plural. It depends on the noun or pronoun they refer. कहने का मतलब ये है, अगर सेंटेंस में ऑल, एनी, नन, सम यूज हुआ है तो हम इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं। शर्त ये है कि ये किस प्रोनाउन को, किस नाउन को रिफ़र कर रहे हैं। ऑल किस नाउन को प्रेजेंट कर रहा है या प्रोनाउन को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि सिंगुलर नाउन को कर रहा है या सिंगुलर प्रोनाउन को कर रहा है। अगर सिंगुलर नाउन को रिफ़र करेगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल प्रोनाउन या नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, सम ऑफ आवर लगेज वाज लॉस्ट। सो हियर यू सी सम इज यूज्ड, indefinite noun. Here some refers to luggage. Luggage is considered as plural, that's why singular, that's why we use was. सम यहाँ क्या रिफ़र कर रहा है, आपका सिंगुलर नाउन, इसीलिए हमने इसके साथ वाज यूज किया यहाँ पे। सेकंड देखेंगे, नन ऑफ हिज एडवाइस मेक्स सेंस। नन किसको रिफ़र कर रहा है, नाउन एडवाइस को। एडवाइस क्या, सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लाया यहाँ पे, मेक्स लाया। सो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कभी भी सेंटेंस में ऑल, एनी, नन या सम आएगा तो हम पहले बात ये देखेंगे कि ये किस नाउन या प्रोनाउन को रिफ़र कर रहा है। अगर सिंगुलर नाउन को रिफ़र कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल नाउन को रिफ़र कर रहा है प्लूरल वर्ब को हम यूज करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, मेक द वर्ब एग्री विद सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। यहाँ पे देखेंगे, there are surprisingly few children in our neighborhood. So here you see the children. Are is used here because of the noun
children. Children is given is plural. That's why there are. Next one you see, there were a social worker and a crew of 20 volunteers at the scene of accident. Again you see, it is plural here, worker, social worker and crew. These two becomes plural. That's why we use plural verb were. And here children refers to plural. That's why we use here are. Come to next one. Words such as athletics, economics, missiles, news are usually singular despite their plural form. तो यहाँ पे एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिसल्स, न्यूज़ ये प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. जैसे स्टैटिस्टिक्स इज एमंग द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इन आवर प्रोग्राम. सो हियर स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू अ सब्जेक्ट. स्टैटिस्टिक्स को हम क्या मानते हैं, ये एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हमने क्या यूज किया, इज. तो यहाँ पे एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मिसल्स, न्यूज़, they are treated as singular. That's why singular verb is used. See, titles of work, company names, words mentioned as words, and gerund phrases are singular. टाइटल ऑफ वर्क हो, कंपनी का नाम हो, वर्ड्स मेंशन्ड एज वर्ड्स हो, जेरंड फ्रेजेस हों, इनको सिंगुलर माना जाता है. दैट्स व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब. लॉस्ट सिटीज, दिस इज द वर्क ऑफ द टाइटल. दिस इज द टाइटल ऑफ वर्क. लॉस्ट सिटीज describes the discoveries of many ancient civilizations. So lost cities refers to what? Singular. Because it is title of work. That's why we use singular verb. For example, you see next, Delmonico Brothers, this is the name of the company, specializes in organic produce and additive free meats. So this is Delmonico Brothers. This refers to the name of the company. That's why we use singular verb. कहने का मतलब ये हो गया, अगर सब्जेक्ट है, अगर वो किसी कंपनी के टाइटल को बता रहा हो, कंपनी के नेम को बता रहा हो, या किसी वर्क हो, टाइटल ऑफ वर्क हो, या जेरंड फ्रेजेस हों, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. नाउ टू कम टू नेक्स्ट वन. ट्रीट कलेक्टिव नाउन्स, टीम, ऑडियंस, क्राउड, क्लास, फैमिली एज सिंगुलर unless the meaning is clearly plural. टीम, ऑडियंस, क्राउड, क्लास, फैमिली को हम जनरली क्या यूज करते हैं, एज ए सिंगुलर. एग्जाम्पल देखेंगे. कलेक्टिव नाउन्स नियरली ऑलवेज एम्फसाइजेज एज अ ग्रुप, एज अ यूनिट. जनरली कलेक्टिव नाउन किसी यूनिट को रिफर करता है, इसको हम सिंगुलर मानते हैं. जैसे द क्लास रेस्पेक्ट्स द टीचर. द क्लास हियर इज अ कलेक्टिव नाउन. हियर इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नंबर. दैट्स व्हाई वी add s in verb, that is respects. क्लास यहाँ सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब ले आया, respects. The board of the trustee meets in Denver twice a year. So here the board of trustees, ये पूरा रिफर कर रहा है कलेक्टिवली. हमने इसके साथ क्या लाया, meets लेके आया. नेक्स्ट देखेंगे. Occasionally a collective noun is treated as plural to draw attention to the individual members of the group. जब कलेक्टिव नाउन प्लूरल के रूप में काम करे तब हम उनके साथ प्लूरल वर्ब लेके आते हैं. जैसे द क्लास आर डिबेटिंग एमॉन्ग्स देमसेल्व्स. यू सी देमसेल्व्स रिफर्स टू प्लूरल. दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर. इफ दैट इज द केस, इट इज बेटर टू चेंज इट टू द क्लास मेंबर्स आर. क्लास मेंबर्स आर डिबेटिंग एमॉन्ग्स देमसेल्व्स. द क्लास आर डिबेटिंग अमंग देमसेल्व्स को इसको हम बदल सकते हैं, द क्लास मेंबर्स लिख सकते हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा. इसके साथ हमने आर लेके आया है. सो हियर वी हैव सीन दैट व्हाट आर द स्पेशल रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो स्पेशल रूल्स कौन कौन से हैं. इस पे हमने देखा कि अगर कलेक्टिव नाउन है, अगर वो रिफ़र कर रहा है सिंगुलर नंबर को, तो हम सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे. अगर प्लूरल रिफर कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लेके आएंगे. इसके बाद हमने देखा कि अगर टाइटल हो किसी वर्क का या कंपनी नेम हो तो उसको सिंगुलर मान के ही सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. इसके बाद हमने देखा जैसे
कुछ वर्ड एस लिए होते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं, जैसे एथलेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मिसल्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इनके साथ एस लगा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लेके आए। इसके बाद हमने देखा कि जब भी सेंटेंस में ऑल, एनी, नन या सम हो तो हम ये देखेंगे इसमें ये किस नंबर के नाउन या प्रोनाउन को रिफर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम यूज करेंगे। सेंटेंस में अगर एनीबडी, एनीवन, ईदर, एवरीवन, नोबडी अगर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर दो सब्जेक्ट्स और नीदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। So this is the part which we have discussed today. Okay, thank you.